warm welcome. My name is Shivani Pandit. I am the founder of Samarthya Foundation, and I am a special educator. I have been working with children with disabilities, in particular autism and intellectual disability, for the past 25 years or so in the US. So I've been working in the US, and now I'm running this foundation, and very happy to be here today to work with SNCC Rehab Foundation and Harshali Kharche and her team, Sushant Shindeji, to be here to bring this wonderful webinar for all of you. Just want to share, I'll take just 1 minute to talk about Samarthya Foundation. We are dedicated to working on issues related to inclusion of children and persons with disabilities in India. And we mainly focus on creating projects related to public awareness, delivering professional development, which is working with teachers and schools, as well as providing a lot of parent training and support to families, because we believe in a lifespan approach. And which is why, while we focus so much on early identification and early intervention of children with autism, being an autism expert myself, that is my main focus to support parents. But I look at the lifespan approach and think about children who are going to grow up and become adults, and the kind of financial supports or planning or management that families should focus on early on in their child's life is why we are here today. So we are really happy, thrilled, delighted to have these series of webinars with Mr. Rahul Kelapure. He is going to be our financial expert for the entire year of 2021. As you may know, we are going to be doing these sessions once a month. Last Sunday of every month, 11:30 to 1 o'clock is going to be our time with Mr. Rahul to talk about all things related to finance for your children and your families. And we are, again, happy to be here today with SNCC Rehab Foundation and Harshali Kharche with her partnership to bring this webinar to you. Like I said, we will meet once a month. So from our family of Samarthya, my team of Akanksha, Tanishka, and on to SNCC. And Harshali, I would love for you to introduce yourself for a second, and then we'll get started with the webinar. Very good morning to all of you. I mean, nice to see all of you here. Everybody is concerned about the finances now. I'll just quickly go through what we have is like SNCC Rehab Foundation. We are based in Nagpur. Our upcoming projects are we are going to work with all the special need kids. For that, our motto is to provide a conducive environment for children with special needs, so as to facilitate their development, education, help them develop their potential to the fullest, and enhance their independence and enable them to become a well-adapted individual in society. For that, we are going to introduce various centers, but now our motto is to educate the parents, develop their perspective towards the right kind of interventions and treatments. At the same time, we are working with many of the professionals, like we have collaborated with Samarthya Foundation. We are fortunate to have Shivani ma'am with us. I mean, she is guiding us on various factors. Now we have Mr. Rahul sir for the whole year to guide us on financial. I'm sure parents will be very well oriented what to do with finance, because it is like this topic we don't touch. We feel like it is abhi nahi karna hai. We have some time, but I feel when your child is young, 4 to 5 years younger than that, you should start planning for your child, whether it is a special or it is a neurotypical. So I'll not take much of a time. I'll hand over back to Shivani ma'am on this. Thank you. Thank you so much, Harshali. Thank you so much again for being here. And we hope that this is going to be a fantastic and informative session for all the parents. Before I introduce Rahul ji and let him take the stage, I just want to tell all the parents here that we have planned the session in a way that Rahul ji will cover some topics and content for about 45 minutes. He will try to get through some slides, and then we will have some time for Q&A, so question and answer session.
And while he's sharing, also, if you have any questions, please put them down in the chat box. Our team is here. We will be collecting questions, and at the end of the session, we'll try to answer as many of your questions as possible by Rahul ji. And of course, we will be in touch via our WhatsApp group or our email. So in case there are any questions that come up later, also we will be there to support you. So with that, I'd like to give a really warm welcome to Rahul ji. He's been an amazing partner for us. He's a financial advisor. He's an assistant legal advisor at the Securities and Exchange Board of India. And he's being so generous with his time and his expertise that we have set up an entire curriculum for the whole year of the different topics that parents of children with disabilities at any age and adult siblings, who have siblings who have disabilities, can think about the various financial topics. So we will be taking one topic a month, and Rahulji will be going in depth in that topic, so as to give you as much information as possible. And at the end of the session, we will also give you handouts from the session that you can keep with you, you can download, so that you have all the information with you. So with that, our today's topic is savings and investments. And Rahul ji, I will go on mute now, and the stage is all yours. Hi everyone, good morning. My name is Rahul, and basically I work with Securities and Exchange Board of India. I'm from Mumbai. Now I stay in Mumbai, of course, but originally I am from the place called Chandrapur. This is near Nagpur. Now, I am really delighted to present these webinars with all of you people here. One of the reason that I'm here is that I'm really passionate about the financial education and the financial planning for the people in India. However, while doing that, I had actually realized that that there are enough information available on YouTube, on Google, and everywhere else. Now, having said that, there's not much of this kind of information is not hasn't reached to the person with disability, whether the intellectual disability or the person with a sensory disability. Now, considering those circumstances, and I've seen, and I'll share in a minute what has actually triggered this whole thing in my mind. See, I myself I'm a person with visual impairment, and I had actually realized when this whole thing, the need of this programs, is when I met a friend whose brother has a cerebral palsy, and her parents were very concerned. And once her mother said to me that I'm really concerned what to do if I die. मेरे बाद में इसका क्या होगा? उसके लिए मुझे सबसे ज्यादा चिंता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरे बाद ना जिए तो अच्छा है. And that actually triggered something in my mind, and I said, yeah, why this is happening? If this is the thought that I had heard from someone whom I know, who's like who are the educated people, उनके life में ये situation है, and that's a real cause of concern for them. And then I realized कि इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए. That was the day when I actually decided to do something about it, and not just of course I take a lot of these investor education sessions for a lot of people, and financial planning sessions for a lot of people otherwise also, but I thought this should be the area that I should be focusing on. और वहां से then it all started, and I'd taken few sessions, and then I met Shivani, and then this whole thing happened, and it clicked so wonderfully well in our first conversation that we were completely on the same page, and this is how it actually started. And from there to now, we having SNCC Foundation with us, and Samarth and SNCC are joined hands,
and we'll be able to reach more and more people, and actually will be able to make a lot of difference in your life and your siblings, or in your children's life. That's the intention here. I have a couple of intentions to start off with this session before we start off with the technicalities of the session, of the program. It will be great if you look at this session as not just some knowledge session, but the session which will actually help you take some relevant actions, some appropriate actions, which will really make a difference in your life, right? So the intention is not to just give you some information about what are the different products, what is investment, what is saving, and all of that. That's all there. But how this session will be different from any other session that you would actually attend on this topic is that, you would actually get the real, actions in your life from this, after this session. So let's begin now. Let's actually talk about savings and investment, right? So let's look at what is the saving. Now, as we in India, all of us know that saving in our life has a very, it's a significant part of our culture actually in India. As you would see in other countries, a lot of people basically, lot of us, we actually say that saving इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इकोनॉमी को बढ़ने के लिए कंजम्पशन इज नेसेसरी, खर्चा करना जरूरी है. लेकिन हमारे इंडिया में हमने हमेशा देखा है कि हमारे पास, हम कुछ ना कुछ पैसा बचा के रखना चाहते हैं. वो हमारे कल्चर का पार्ट है. यू वुड सी बहुत पुराने जमाने से हमेशा हमें सिखाया गया है हमारे पेरेंट्स की तरफ से, या हमेशा, और बचपन में भी हम, चाहे वो छोटी छोटी पिगी बैंक्स हो, या जो पहले के जमाने में छोटे छोटे इस तरह के गुल्लक होते थे, मटकी टाइप के छोटा सा होता था जिसमें कि आप पैसे, कॉइन्स या इस तरह से कुछ पैसे रखते थे. अभी के जमाने में थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया. अभी हम शायद पैसा उस तरह से बहुत कम रखते हैं. अभी हम लोग या तो अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं और किसी तरीके से रख सकते हैं. हमारे घर पे कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे. I'll give you a small example. My mother used to do this. She would, when I was young, she would actually keep some money, अलग-अलग डब्बे में थोड़े पैसे ऐसे रख देती थी. और जब कभी ज्यादा दिक्कत आती थी पैसों के लिए, कभी कुछ पैसे नहीं है और ये है, तो वो कहीं ना कहीं से पैसे निकल के आते थे मम्मी के, कहीं ना कहीं से, किचन में से, किसी डब्बे में से. कहाँ पर कहीं दाल रखी है, कहीं पे चीनी रखी है, कहीं पे चावल रखे, वो डब्बे में कहीं ना कहीं पे पैसे मिल जाते थे. सो दिस इज द मैजिक वी हैड. वो पहले से हमारे पास रखा हुआ है. तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, जैसे मैंने कहा. तो अब सेविंग हमारे लिए क्या करता है? हम सेविंग क्या करते हैं? सेविंग वो इसलिए हम रखते हैं, एक छोटा सा पार्ट हम अपने पैसों का एक साइड में निकाल के रखते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा एक तो जरूरत पड़ने पे कभी काम में आने के हिसाब से ये होता है. अच्छा, हम सेविंग क्यों करते हैं? Why do we do the savings? So we do a saving for a lot of different purposes. चाहे वो कोई चीज खरीदनी है हमें, जैसे मान लीजिए हमें कोई हमें इमरजेंसी आती है, कोई कभी किसी पर्पस की वजह से होता है. फॉर एग्जांपल, कभी मुझे मान लीजिए कोई मोबाइल फोन खरीदना है या कोई और चीज खरीदनी है, दैट आई रियली वांट टू, और मे बी
कुछ लोग तो ये करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सेव करके पैसा दे गो फॉर ट्रैवल, या कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा अलग 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 पर्पजेस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कोई जॉब लॉस हो जाए, कोई पैसा अभी यू मस्ट हैव बीन सीइंग दैट इन दिस कोरोना टाइम लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, तो जिनके पास थोड़ा बहुत सेविंग का पैसा था, कुछ पैसे इस तरह के थे, तो वो अपना टाइम अच्छे से निकाल पाए। देखिए हम कई बार कहते हैं कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं, लेकिन एक्चुअली मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कम से मतलब जो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास सेविंग की हैबिट है, लेकिन एट द सेम टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये भी हमारे साथ रही है कि हम पैसों को एक अलग टाइप से, एक अलग तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं यार पैसा क्या इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए पैसों के बारे में हम जब कई बार बात करते हैं, हम जाके मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो 4 बार वो टमाटर को इधर उधर से करके गोल घुमा के देखते हैं कि टमाटर ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन जब हम कोई भी फाइनेंस या कोई पैसे की बात करते हैं तो हमेशा ये बात नहीं होती, हम तो किसी ने कुछ कह दिया इसलिए हम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी कह रहा था, तो ये सेविंग का इस तरह का इंपॉर्टेंस है। और जैसे यू कैन सी प्रोबब्ली ऑन योर स्क्रीन कि ये सेविंग के क्या क्या है। जैसे कि आप अपने फाइनेंस को अपने जो क्या कहते हैं, कहीं पे आपको वेकेशन कहीं घूमने जाना है तो आप पैसे वहां पे लगा सकते हो। फिर आपका कोई जो कहीं पे आपने खर्चा आपको करना, उधार कुछ लिया हो तो उसके लिए आप पैसा खर्चा कर सकते हो, राइट। आपका जो रिटायरमेंट के लिए आप आपकी तैयारी कर सकते हैं, राइट। कोई एजुकेशन लेना है, अलग अलग चीजों के लिए आप इस तरह से ये जो है आप उसको सेविंग का आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये तो पार्ट हो गया सेविंग। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली सोचते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही है, बट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में एक नहीं है। उसको कैसा कैसा डिफरेंस है हम अभी उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए हम जब अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेविंग करते हैं, सेविंग तो हमेशा हम करते रहे हैं कई बार, लेकिन कई बार हम इन्वेस्ट नहीं करते। हम सोचते हैं यार मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, बस हो गया, मेरा सेव हो गया, या वही मेरा सब कुछ है, उसी पे मैं आगे का अपना जो भी लाइफ आगे ही करूंगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ये होता है जो आपके एक्चुअल में आपके पैसों को ग्रो करने में मदद करता है। तो आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने की क्यों जरूरत है? तो अभी हम आते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो आपको ये जो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अलग अलग प्रोडक्ट्स में आएंगे, लेकिन हम अगर जैसे कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, तो हमें वो इन्फ्लेशन से आगे बढ़ाता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जैसे हम लोग सब जानते हैं महंगाई हर साल बढ़ती रहती है। कि अभी जैसे मैं कल परसों कहीं पे पढ़ रहा था, ये कोरोना के टाइम पे भी महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, जबकि बड़ी सरप्राइजिंग चीज है हालांकि कि सब बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारे काम बंद रहे हैं, फिर भी जो है महंगाई बढ़ी है। क्यों? क्योंकि शायद खाने पीने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या हुआ, एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए अगर आप मान लीजिए आज के डेट में 1 किलो एप्पल जो है वो 100 रुपए का है। आज से एग्जैक्टली 1 साल बाद अगर आप वो 1 किलो एप्पल खरीदने जाएंगे तो वो एप्पल की वैल्यू क्या रहेगी? वो 100 रुपए रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, तो वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं 105 रुपए किलो हो गया। अब क्या हो गया, सेम 1 किलो एप्पल खरीदने के लिए आपको 100 रुपए की जगह पे 105 रुपए देने पड़ेंगे। जब आपको 100 रुपए की चीज के लिए 105 रुपए देने पड़ते तो उसमें क्या होता है, 5 रुपए का उसमें
जो है उसका भाव बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया है। तो आपका इन क्यों बढ़ा है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो आपका जो 5 रुपया था वो आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 5%। यह बड़े सिंपल एग्जांपल से इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको इस तरह से ये सिंपल एग्जांपल से आपको याद रहे, समझने में आसान हो। तो आप इसको देखिए कि अगर मैंने मान लीजिए मैंने आपके जैसे मैंने पैसा सेव करके रखा था, मैंने आपके अपने घर पे रखा था, पैसा बचा के रखा था 100 का नोट, ये मेरा लकी नोट है, इसको मैं खर्चा नहीं करूंगा। 1 साल बाद उसको खर्चा करने जाते हो तो वो एक्चुअली आपके 100 रुपए की नोट की वैल्यू जो उसके ऊपर जो फेस पे जो लिखा हुआ, उसके नोट पे लिखा हुआ वो तो 100 रुपया है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो 100 रुपया नहीं है, वो मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली आपका 95 रुपीज बचा हुआ है उसका प्राइस। तो वो आपका 100 रुपये का नोट जो है वो 95 रुपीज का हो गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया? आपकी पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब ये तो मैं आपको कह रहा हूं 1 साल में हो गया। अगर आप इसी पैसे को, इसी 100 की नोट को अगर आप 4-5 साल रखते हो, उसी तरह से 5% अगर मान लीजिए रेट इन्फ्लेशन का बढ़ता है, जबकि कई बार ज्यादा भी बढ़ता है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में 6 से 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ी है। तो उस तरह से हम अगर उसको देखेंगे तो करीब करीब आप देखोगे अगले 4-5 साल में वो आपकी पैसे की, क्योंकि वो कंपाउंडिंग होता है, वो हम उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो आपकी वो जो 100 रुपए की वैल्यू है वो 50 रुपए होने में 4-5 साल के अंदर अंदर वो 50 रुपए उसकी वैल्यू हो जाएगी। आपको नोट तो दिखेगा 100 रुपए का, लेकिन इतना तेजी से वो होता जाएगा कम उसकी वैल्यू कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उसके अंदर। दूसरा हम देखते हैं कि आपने कही ठीक है, मैंने मैं उसको जो है पैसे को जो है अपने तकिए के नीचे नहीं रखूंगा, अपने पिलो के नीचे नहीं रखूंगा उसको, आई विल कीप इट इन द बैंक, सेविंग बैंक। तो उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है बैंक में? 3 से 3.5 4% तक मैक्सिमम मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि शायद 5%, 6%, 7% पे मिलता है, आजकल कुछ एड्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। उसके लिए कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसकी वजह से मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसमें होगा कि मिनिमम आपको 5 लाख रुपए अकाउंट में रखना पड़ेगा या कुछ 2 लाख रुपए रखना पड़ेगा, व्हाटएवर इस तरह की कंडीशंस होती है, तभी आपको वो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उस तरह का। और भी कुछ तरह के इस तरह की कंडीशंस होंगे। सो बेसिकली द आइडिया इज बेसिकली कि वो आपको सेविंग्स जो है वो आपको जो है आपको कभी भी इन्फ्लेशन के आगे नहीं कराता। वो आपको, वो जरूर बेटर है, पूरा का पूरा खर्चा कर दो इससे भी तो डेफिनेटली इट इज बेटर टू एक्चुअली कीप इट इन सम वे, सेव इन सम वे। मे बी या तो घर पे रखो या कहीं, मे बी कीप इट इन योर सेविंग्स बैंक अकाउंट, इट इज स्टिल बेटर देन डूइंग नथिंग, बट दैट्स नॉट द वे दैट विल एक्चुअली ग्रो and have a peaceful life for your sibling and for you। क्योंकि ये जो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, ये जो मैं अभी बात आपके सामने कर रहा हूं, this is applicable for your siblings or your kids, but आपके खुद के लिए भी जरूरी है इस चीज को समझना, right? So we actually spoke about inflation, ठीक है। तो उसी तरह से आपको, क्योंकि आप सेव करते रहते हो तो आपको आपकी जो है वेल्थ बिल्ड हो सकती है। वेल्थ कैसे बिल्ड होगी? क्योंकि आपको हमेशा जब आप कोई कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा ग्रो होता है। ग्रो कैसे होता है? वो ग्रो इसलिए होता है क्योंकि वो जो है इकोनॉमी में जो पैसा बढ़ता जाता है, इकोनॉमी, मान लीजिए आपने शेयर में पैसा लगाया है, तो अगर वो शेयर कब बढ़ता है? जब इकोनॉमी बढ़ती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है।
तो उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होती जाती है पैसों की, तो आपके पैसों की ग्रोथ होती है। जिस तरह से महंगाई भी बढ़ती है उसी अनुपात में, उसके कम, उस तरह के थोड़े से उस प्रोपोर्शन में ही आपका पैसा ग्रो होता जाता है, राइट। सो दैट इज द जिसकी वजह से आपका पैसा ग्रो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन्वेस्ट जब आप करते हो तो आपको जो है टैक्स भी बचता है। कैसे टैक्स बचता है? जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कई सारे इन्वेस्टमेंट के ऐसे आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको आपके जैसे शेयर मार्केट में मान लीजिए आपने पैसा लगा दिया, इक्विटी जिसको कहते हैं, उसमें जब हम पैसा लगाते हैं तो 1 साल के बाद आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, अगर 1 साल तक आपने पैसा लगाया होता है। या उसी तरह से अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपने अगर पैसा लगाया होता है तो आपको टैक्स आपका बच जाता है। लेकिन अगर आप सेविंग, मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा है और आपके सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, तो क्या होता है उसमें, जब आप आपके सेविंग में अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको टैक्स लगता है उसके ऊपर पूरा आपके टैक्स के ब्रैकेट के हिसाब से। जो भी आप 10% में आते हो या 20% में आते हो या 30% में आते हो, डिपेंडिंग ऑन द टैक्स ब्रैकेट दैट यू आर इन, आपको आपका टैक्स उसके ऊपर पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां पे ऑप्शन होता है, अलग अलग आपके पास टेक्निक्स होती हैं, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट के कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप पैसा लगाते हो तो आपको ये नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट, सॉरी, आपके ऊपर उसको टैक्स नहीं लगता है, राइट। उसी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स आप अचीव कर सकते हो, आपको हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट। सो ये तो अभी हम देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हम एक शॉर्ट में समझते हैं इस बात को, राइट। तो हमें ये देखना है, ये जिस तरह से ये बड़ा टेक्निकल आपको दिख रहा होगा कि डज द कंपनी एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके कंपनी के जो है क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, इसका लो पे आउट रेशियो है, कि बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन आप इन्वेस्ट, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम आगे के सेशंस में जिस तरह से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इन सब चीजों को करना बड़ा आसान है। एक एक चीजों के हम जब प्रोडक्ट्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे तो आपको आसानी से पता चलता जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजों का ध्यान रखना आप कर सकते हो कि क्या कंपनी की ग्रोथ हो रही है, क्या ये आपके कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, आपको समझता है कि कई बार हम लोग, कंपनी तो सब बहुत अच्छी, लोग कई बार कहते हैं कि यार ये बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा, ये होगा, लेकिन आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में अगर आप जानते ही नहीं होंगे तो आपको उस चीज में दिक्कत आ सकती है, राइट। उसमें कंपनी की ग्रोथ हो रही है क्या, राइट, कंपनी का जो है कंपनी कितना उधार ले रही है, पैसा कितना ये मार्केट से पैसा उधार ले रही है, उसका डेट कितना है, खर्चा कितना है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, कहीं भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, इमोशंस को हमेशा 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 दूर रखिए इन्वेस्टमेंट से। उसके में कैसे होता मैं बताता हूं क्या होता है उसमें। कई बार क्या होता है, आई हैव ऑलवेज सीन कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो हमेशा हमें लगता अरे यार अभी ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उसमें दो चीजें होती है। लोग कई बार कहते हैं यार मेरे को नहीं पैसा निकाल लेना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं पैसा निकाल लेता हूं। और जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ का जो आपका पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है। और उसी तरह से जब मार्केट गिर रहा होता है तभी भी हम लोग वही गलती करते हैं। अगर अच्छा भी इन्वेस्टमेंट है तो भी मार्केट गिरते हुए मार्केट में हम क्या कहते हैं, अरे बेच दो सब बेच रहे, बेच दो। लेकिन हमने क्या करना चाहिए, जब मार्केट गिर रहा हो तो हमेशा से आपने खरीदना चाहिए।
कोई भी, चाहे शेयर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इस तरह की कोई चीज हो, मार्केट लिंक्ड कोई भी प्रोडक्ट हो, उससे क्या होता है कि आपको सस्ते में चीज मिलती है। देखिए हम जनरली लाइफ में क्या करते हैं, जब हम, आपको लगता है कि मार्केट में एक पर्टिकुलर कोई सब्जी सस्ती है तो हम ज्यादा खरीदते हैं कि नहीं? कोई भी, मान लीजिए प्याज अगर सस्ता हो रहा था हम ज्यादा खरीदते हैं, महंगा होता तो हम कम खरीदते हैं। क्या हम उसी तरह की चीज कर सकते हैं क्या इसमें, कि जब हम मार्केट नीचे जा रहा हो तो वी कैन एक्चुअली बाय मोर एंड नॉट सेल। अगर, हालांकि इस चीज को एक क्वालिफाइड स्टेटमेंट मैं जरूर दूंगा कि वो आपने अच्छे किसी शेयर में समझा, मतलब इन्वेस्ट किया होना चाहिए, अच्छे किसी फंड में इन्वेस्ट किया हुआ होना चाहिए। अब वो कैसे अच्छा फंड चुनना है उस पर हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन ये आपको समझना उस टाइम पे जरूरी है कि ये, अगर मेरा फंड अच्छा है, मैंने पैसे अच्छे कंपनी में लगाया हुआ है, तो मेरे को निकल नहीं जाना है, पैनिक होके नहीं निकलना है। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, कई बार कितना बड़ा फायदा होता है। लेट 80s में एक मेरी एक प्रोफेसर थी, उन्होंने कहीं जान पहचान के थ्रू शायद या किसी तरीके से कि उनको किसी ने बोला कि जो पैसा थोड़ा सा लगाइए इन्फोसिस में। आप सब जानते हैं इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, अभी उस टाइम पे बड़ी शुरुआत हो रही थी उसकी। उनने चलो ठीक है देखते हैं करके उन्होंने ऐसी 2000 रुपए लगा दिए। अब जब उन्होंने 2000 रुपए लगा दिए और एक्चुअली वो लोग भूल गए पैसे लगा के, उसके बाद में 20-25 साल तक एक तरह से भूल गए उस चीज को। और जब बाद में अचानक से उनको पता चला, कोई डिविडेंड का लेटर आ गया, कुछ इस तरह की कोई चीज आ गई, या स्प्लिट शेयर का कुछ तो उनको लेटर आया कंपनी की तरफ से, तो पता चला अरे ये तो हमारे इतने शेयर थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, उन पैसों की 25-30 साल में उन पैसों की वैल्यू करोड़ों में हो गई, वो 2000 रुपए की। नाउ व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज दे स्टेड इन्वेस्टेड इन द मार्केट। हालांकि उनके केस में होगा कि वो लोग तो भूल गए थे, लेकिन इस तरह का पोटेंशियल है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो इस तरह का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मान लीजिए किसी ने, अगर एक एग्जांपल की तरह, मैं कुछ टाइम पहले कुछ देख रहा था, किसी ने मान लीजिए 10,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाले होते 1995 में, और अगर डाल के अगर भूल जाते तो ठीक ठाक, जनरली किसी भी म्यूचुअल फंड में करीब, वो आज की डेट में उसका वैल्यू 8 लाख रुपीस से ज्यादा होता। तीसरा एक एग्जांपल हम समझते हैं। अभी मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, मार्केट ने पिछले 40 सालों में या 42 इयर्स में मोर देन 50 टाइम्स, आपको 40 साल में 50 गुना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है स्टॉक मार्केट ने। कुछ कैलकुलेशन में देख रहा था उसके साथ। तो आपने मान लीजिए 40 साल पहले अगर 1000 रुपए डाले होते तो उसके 50,000 रुपए हो चुके होते। तो उस तरह का इसके अंदर पोटेंशियल है आपके पास, लेकिन हमेशा इसको, इमोशंस को दूर रखने की जरूरत है। हालांकि इसके साथ में आई वुड वांट टू कॉशन यू ऑन समथिंग, नेवर इन्वेस्ट एनीवेयर विथ उधार के पैसे से। मान लीजिए लोन लेके या किसी से पैसे लेके, अगर आपके पास में स्पेयर पैसा है तभी ही आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। उस पैसे को, आपके पास पैसा अभी है, साथ में आपका खुद का जो आप सेव करके कर सकते हो या रख सकते हो साइड में, then and then only you should have the then and then only you should actually invest in the market.
अदरवाइज आपने नहीं करना चाहिए। और उधार के पैसे लेके, ये क्यों मैं बताता हूं आपको, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 10,000 आपने लिया, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे लिया, और आपको अगर पैसा वो मिल रहा है, मान लीजिए आपको 100 रुपया, मान लीजिए आपको एक मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि आपको 12% के हिसाब से, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा वापस करना है, तो आपको क्या होगा, आपको लगेगा एक जस्ट से अप्रोक्सीमेटली आपको 10,000 रुपए का 11,020 रुपए आपको वापस करना है। अभी मान लीजिए वो अच्छा शेयर था, सब कुछ सही था, लेकिन किसी वजह से वो शेयर नीचे गिर गया, आपको उसी टाइम आपका पैसा नहीं आप लगा पाए, वो शेयर मान लीजिए 10,000 का आपने लिया था, वो हो गया 9,500 का। अब क्या हो गया, आपने उधार का पैसा, आपको तो पैसा देना ही देना है, और आपको लॉन्ग टर्म में भी इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो कभी भी उधार का पैसा लगा के आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना है, राइट। आपको हमेशा ये देखने की जरूरत होती है कि ये इसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है क्या, जो जिस आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या उसका क्रेडिट रेटिंग ठीक है, क्या उसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, क्या वो कंपनी आपको अच्छा, क्या उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग ठीक है कि नहीं। तो उसके आपको हमेशा आपको इस तरह का बहुत सारा इस तरह का रिसर्च करना पड़ेगा आपको, अगर आप खास करके अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो, राइट। कंपनी की वैल्यू क्या है, ये आपको बहुत सारे आजकल आसानी से गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन आपको अच्छा ये रेटिंग क्या होता है, हम पहले समझते हैं। रेटिंग ये होता है कि वो उसको आपको दिख जाएगा AAA, AA+, AA, इस तरह की रहेगी, आपको उस तरह की रेटिंग आपको दिखती जाएगी, मिल जाएगी हर एक कंपनी की। जो पब्लिक से जो पैसा उठाता है कोई भी कंपनी, उसको ये करना मैंडेटरी है, जरूरी है। Now, when we are talking about these things, we have to be actually aware, because अच्छा ये इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम एक क्विकली अभी समझते हैं कि हमारे पास सेविंग्स के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। एक तो होता है आपका सेविंग अकाउंट में आप पैसा रख सकते हो, जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है। फिर आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको क्या मिलते हैं मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि आपको किसान विकास पत्र जो होता है, या इस तरह के कई सारे आपको प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि आप सेविंग के लिए पैसा आपको मिल जाता है। तो सेविंग्स अकाउंट में तो जैसे मैंने कहा था पहले आपको कि आपको पैसा रखने के लिए बहुत आसानी से ये हो जाएगी। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उससे कम से कम आपका जो इन्फ्लेशन है उसको ये नहीं कहूंगा कि उसको पूरा करता है, लेकिन जो आपका उसके ब्याज मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इन्फ्लेशन के जो आपके पैसों की जो वैल्यू कम होती है उसको कम से कम मिटिगेट करता है, थोड़ा बहुत कम करता है उसके असर को, राइट। और क्योंकि ये तो थोड़ा कंपैरेटिवली सेफ ऑप्शन है, हालांकि ये पूरी तरह से बैंक अकाउंट में पैसा रखना ये पूरी तरह से सेफ है क्या नहीं, उसके आई हैव माय डाउट्स ऑन दैट। जिस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं बैंक में पैसा रखना, सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखे रहना बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। लोग कई बार कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पैसा डूबेगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे आप शायद जानते होंगे 1 लाख रुपए तक का आपके बैंक में आपको इंटरेस्ट आपको मिल जाता है, सॉरी जो 1 लाख का जो आपका डिपॉजिट होता है वो आपको उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक आपको उसके ऊपर इंश्योरेंस देता है, पैसे का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है, जो कि अभी 5 लाख हो रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर का पैसा है तो उसमें भी इंश्योर नहीं है होता है, वो पैसा डूब सकता है। और आपको 2-3 एग्जांपल आपको अगर बताऊंगा मैं, तो अगर यस बैंक का एग्जांपल है जो इंडिया में भी जो अभी तो पैसा आ रहा है क्योंकि उसको बचा लिया है बैंकों ने, बाकी बैंक्स ने। उसी तरह का दूसरा एक एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो काफी ठीक ठाक सा पैसा दे रहे थे,
इंटरेस्ट अच्छा दे रहे थे, बेटर दे रहे थे। पीएमसी बैंक, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो था, तो उसमें भी कई लोगों के पैसे अभी फिलहाल अटके हुए हैं उसमें। तो बैंक में भी दिक्कतें होती हैं, बैंक में भी पैसा अटक जाता है, डूब जाता है कई बार। तो ये है, हालांकि इंडिया में जनरली वो नहीं होने देते, लेकिन ये रिस्क जरूर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो होता है, लेकिन आपको पैसा मिल जाता है। जब भी आपको अगर पैसे की आपकी जरूरत होती है तो आपको आपका पैसा मिलता रहता है। आपकी जरूरत के समय आपको पैसा मिलता है, उसमें जब भी आप चाहोगे आप आपके एटीएम से पैसा निकाल सकते हो। तो उसको कहते हैं हम लोग फाइनेंस की भाषा में लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होती है उसके अंदर, जब जरूरत हो तब पैसा मिलता है, वो बहुत बढ़िया उसकी ये ऑप्शन होता है। तो ये जो टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट है, जैसे सैलरी अकाउंट होता है ये, और टाइप्स ऑफ माइनर अकाउंट होता है। माइनर के लिए भी आप एक सेविंग अकाउंट बना के उसके नाम से पैसा रख सकते हो। कई बार तो बैंक आपको जीरो डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट भी देता है, राइट। सीनियर सेविंग्स अकाउंट एक होता है जो कई बार ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आपको कहीं पैसा रखना है तो सीनियर सेविंग्स अकाउंट, सीनियर के लिए सेविंग्स अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए होता है। उसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज उसमें आपको आधा % तक आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिल जाता है कई बार। सो दैट्स अ गुड ऑप्शन, हो सकता है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सबके लिए। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आप पैसा आपका बैंक में रखते हो, आपको एक कुछ समय के लिए पैसा बैंक आपका इस्तेमाल करते हो, जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट से आपको थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देता है। उसमें क्या होता है कि आपका पैसा कुछ समय के लिए तो अटक जाता है, लेकिन आपको बेटर रेट ऑफ रिटर्न देता है। अब हालांकि ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये बहुत बढ़िया है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन को फिर भी ये कई बार बीट नहीं करता है। अभी हम देखेंगे तो 5.5% तक का, करीब करीब 5.5-6% भी बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आ जाती है आपको, बिकॉज उसमें आपको टैक्स का इम्प्लीकेशन होता है। उसमें अगर मान लीजिए आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 2% उसमें से सीधा सीधा निकल जाता है करीब करीब, और आपको सिर्फ 4% ही उसका ब्याज एक्चुअल में मिलता है। और सेविंग अकाउंट में तो और भी बुरा हो जाता है, बिकॉज सेविंग अकाउंट में आप जब करते हो तो आपको, अगर आपका 4% आपको मिल रहा है तो उसमें से भी आपका 1.5% करीब करीब आपका निकल जाएगा, जिससे कि आपको 2.5% ही रेट इंटरेस्ट का मिल जाएगा। तो उसमें और भी ज्यादा नुकसान होता है। तो आप बैंक की तरफ से आप बैंक में भी ये पैसा रख सकते हो, जैसे अभी आप probably could see बैंक में भी you can keep the money and बैंक के एफडी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपको वो रिकरिंग डिपॉजिट एक होता है, आरडी, सब लोग आप जानते हो, आप हर समय वो थोड़ा थोड़ा हर महीने आप कुछ पैसा लगा सकते हो। पहले के जमाने में आरडी बहुत बढ़िया ऑप्शन होता था, अभी इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक सेविंग की आदत डालने के लिए, इस तरह से ये करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आरडी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो और आपका जो है इंटरेस्ट वो लॉक हो जाता है। पहले का एक टाइम था जिसमें कि लोगों को 18% के हिसाब से भी आरडी लोगों ने की है, वो आरडी खत्म होते थे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उनको रेट ऑफ रिटर्न मिले हैं, लेकिन अभी वो उतना नहीं है। उसमें आपको आरडीज में आपको एक महीने का भी आप फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हो, और 3 महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से, 10 साल तक का भी आप ये कर सकते हो। अभी आप जैसे देख सकते हैं कि अभी के लिए 6.5% का आपको रेट ऑफ रिटर्न अभी इस टाइम पे मिल रहा है। अभी जैसे हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आपको ओवर द लॉन्ग टर्म आपको आपके पैसे को ग्रो कराता है। कैसे? क्योंकि जो आपकी जो सेविंग्स है, आपका जो पैसा बचा हुआ है, उसको वो ग्रो करवाता है, क्योंकि वो ऐसे एसेट्स में डालता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इनकम जनरेट करेगा, आपको ग्रोथ जनरेट करवाएगा। जब हम सेविंग करते हैं तो क्या होता है कि वो एक
एक हम पैसे को एक तरह से बाजू में थोड़ा रख देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे हम उसको ग्रो करते हैं। सेविंग हम जनरली करते हैं तो क्या करते हैं कि एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट हम करते तो उसमें पैसा नुकसान होने का चांस जरूर रहता है, सेविंग में वो बहुत कम हो जाता है चांसेस। सेविंग के ऊपर आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि उसमें इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, राइट। सो उस तरह की ये चीज आ जाती है। अभी हम अगर कहें बात तो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो एक तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है शेयर। शेयर में आप पैसा लगा सकते हो, शेयर में आप पैसे को ग्रो भी आपके करवा सकते हो अच्छी कंपनी में। उसके लिए जरूरत होती है बहुत ज्यादा ध्यान रखने की, आपका पैसा ग्रो हो रहा है, मतलब क्या आपने अच्छे कंपनी को चुना है कि नहीं, बार बार उसको रिसर्च करने की जरूरत होती है। हमेशा एक चीज से बचे रहना जरूरी होता है, जो कि कई बार लोग आपको जो टिप्स देते हैं कि ये टिप है, ये तो ग्रो करने वाला है, ये ऐसे होने वाला है, टिप कई बार गलत होती है, और टिप में कई बार गलत इंफॉर्मेशन, आपका पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो खुद से उसको इंडिपेंडेंटली वैल्यू करना, उसके क्रेडिबल रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ना, ये सब इसमें इसको जरूरी होता है। लेकिन अगर आप अच्छे शेयर्स करते तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको पैसे को बहुत तेजी से ग्रो करवाता है। आपको डिविडेंड मिलता है, उससे थोड़ा थोड़ा आपको उस तरह का उसका भी पैसा मिलता जाता है। अगर हम देखेंगे तो शेयर्स ने हमेशा बाकी के एसेट के हिसाब से ज्यादा आपको जो है रेट ऑफ रिटर्न दिया है। मेरे कोई रिश्तेदार है, मुंबई में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ सालों पहले बड़ा सस्ते में घर लिया था, एक फ्लैट लिया था, और उन्होंने कहा था कि हमने उस टाइम पे 1 लाख का हमने फ्लैट लिया था, 80s के एंड में 1 लाख में फ्लैट लिया था मुंबई में, और अभी वो कहते हैं उसकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास है। अगर मैं आपको उस चीज को कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मुझे पक्का मालूम है, अगर अच्छे शेयर्स में किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाला होता उसी समय उतना पैसा, तो आज वो उसकी वैल्यू पक्का 2 करोड़ से ऊपर होती। तो ये चीज होती है इसके अंदर, वो बड़ा बाकी के कई एसेट्स में हमें ऐसा लगता है कि मेरा घर जो था, मैंने 1 करोड़ का फ्लैट लिया तो 1.5 करोड़ का हो गया, लेकिन कई बार आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आपको लिक्विडिटी के साथ साथ, क्योंकि आपको ये पैसा आपको इस्तेमाल करने को, मान लीजिए आपने घर ले लिया है, वो घर आपको अगर पैसे की जरूरत लगती तो आपको पैसा वो पूरा का पूरा नहीं मिल पाएगा इस तरह से आसानी से। लेकिन आप अगर शेयर्स आपके पास है किसी कंपनी के, कोई म्यूचुअल फंड है, तो आप बहुत आसानी से वो थोड़ा सा पोर्शन आप बेच के आपकी फाइनेंशियल वो नीड को पूरा कर सकते हो, राइट। तो आप इक्विटी में या आपके शेयर में कैसा पैसा खर्च लगा सकते हो, या तो आप सीधा शेयर में लगा सकते हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा फायदा हो सकता है इस तरह से, क्योंकि आपको बार बार देखना नहीं पड़ता मेरा म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है क्या, या ये बढ़ रहा है क्या मेरा पैसा, या नहीं बढ़ रहा है। उस तरह से आपको चीजों को आपको पता चल जाएगा। ये इसमें तो आपको म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हो तब छोटे से शुरुआत कर सकते हो, और आप बहुत तेजी से आपके पैसा ग्रो होते हैं। म्यूचुअल फंड में भी देख सकते हो, वो डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि बार बार आपको एक ही शेयर में पैसा लगता नहीं, उसमें बहुत सारे, एक बास्केट ऑफ शेयर में, एक बहुत अलग अलग शेयर्स में थोड़ा थोड़ा आपका पैसा लगता रहता है। तो हम जब म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। आप थोड़ा सा आपके पैसे में से थोड़ा सा, मे बी 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हो, और आप एक तरह से आरडी की तरह, या एक पॉजिटिव मैं कहूंगा ईएमआई की तरह आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, और आपको ओवर द लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा वेल्थ उसमें बिल्ड होता हुआ आपको ये करना पड़ेगा। और आपको बार बार, जैसे मैंने कहा कि आपको बार बार ये विदाउट लुकिंग एट द
मार्केट आप आपका काम कर सकते हो, और आप बीच बीच में हर 6 महीने में 4 महीने में आप उसको एक बार देख सकते हो आपका ग्रोथ किस तरह से हुआ या क्या हो रहा है। आपको कमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कमोडिटीज क्या होता है, जैसे जो कमोडिटी में सबसे जो फेमस इंडिया में है वो है सोने में, सोना पैसा। हमारे पास सोना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। हम सोचते हैं कि शादी के लिए, हर चीज के लिए सोना रखते हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग कई बार फिजिकल गोल्ड लेके खरीद के रखते हैं, उसमें गहने बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन कुड बी, आपको अगर सोना पैसों इन्वेस्ट करना है, आपको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हो, तो आपको मे बी आप ETF में, गोल्ड ETF होता है, या इस तरह के ऑनलाइन आपको पैसा ऑनलाइन आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आप जितना सोना खरीदते हो उसके एवज में उतना ही सोना वो कंपनी आपके ब्याह पे सोना खरीद के रखती है अपने पास में। और हमें फायदा ये होता है कि हमें पैसों की बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सोना क्योंकि अगर हम घर पे अपने रखते हैं तो उसमें भी कई बार दिक्कत हो जाती है कि वो चोरी होने का डर होता है, या कहीं लॉकर में रखते हो तो भी उसमें दिक्कत होती है। तो आपको ये जो है कमोडिटीज में भी इस तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। आपको कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स आजकल मिलते हैं। कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स में आपको भी आप पैसा लगा सकते हो, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो थोड़ा आपको हायर रेट ऑफ रिटर्न में फिक्स डिपॉजिट होता है। हालांकि वो ज्यादा रिस्की होता है, बिकॉज वो एक तरह से हम कंपनी को पर्सनल लोन देते हैं, उस तरह से होता है। वो जरूर थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन उसमें रेट ऑफ रिटर्न काफी अच्छा देता है। कई बार तो देखा होगा मैंने कि 12% 13% भी कुछ कंपनियां ये फिक्स डिपॉजिट का आपको पैसा देता है। तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो, अपने लिए खरीद सकते हो। ये काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, राइट। और आप 100 रुपए से भी उसकी शुरुआत कर सकते हो, बड़ा आसानी से होता है। और अभी फिर भी क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस पर सपोर्ट है, तो आपको वो काफी सेफ्टी के हिसाब से काफी बेहतर होता है। आप पोस्ट ऑफिस टाइप डिपॉजिट में भी आप आपका पैसा लगा सकते हो, जो आपको काफी सेफ अगेन होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें सॉवरेन उसका सपोर्ट होता है। तो आपको उसमें भी काफी ऑप्शन ये फायदा हो जाता है। उसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं, इसमें 1 2 3 साल के हिसाब से आपको अलग अलग साल के हिसाब से आपके या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टाइम डिपॉजिट स्कीम होती है, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इन्वेस्ट करने के अंदर। इसका जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट तो होता है क्वार्टरली क्रेडिट होता है, लेकिन आप साल में एनुअली आपको पेड मिलता है ये करके। तो आप पीपीएफ में भी आपका पैसा लगा सकते हैं। पीपीएफ क्या होता है, उसमें आपको एटीसी के अंदर आपको टैक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं पे, तो आपको ईपीएफ मिल जाएगा, जहां से कि आप वहां पे भी आपका पैसा लगा सकते हो, जो कि मतलब ऑलरेडी जो कंपलसरी होता है, जिसको कि आप एटीसी के अंदर आपका इनकम टैक्स में आप फायदा ले सकते हो। तो आपके पास ईपीएफ या पीपीएफ दोनों ऑप्शन होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जब आपको अगर कोई ज्यादा इन्वेस्ट करना हो, तो उसमें अभी फिलहाल 7.1% का रेट है, लेकिन वो हर साल बदलता रहता है, अभी कम होता जा रहा है। पहले बहुत अट्रैक्टिव है स्कीम थी, राइट। आपके पास किसान विकास पत्र, जैसे मैंने कहा था, किसान विकास पत्र एक होता है जो बहुत पॉपुलर रूरल एरियाज में है, आपके पास अवेलेबल है। अब सबसे और दूसरा, अब मैं अगली पे बात करता हूं, जैसे नेशनल पेंशन की एनपीएस, राइट। नेशनल एनपीएस जो है नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें क्या होता है, उसमें आपको 50,000 तक का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स में। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करता है। ये मैं क्यों ये कह रहा हूं, ये आपको इसलिए करता है कि आपके रिटायरमेंट के बाद या आपके सिबलिंग्स के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जिनके लिए, या आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं,
बाद में उनके लिए भी एक कॉर्पस बना रहे और साथ के साथ में एक तरह से पेंशन की तरह एक अमाउंट उनके लिए मिलती रहे, उसके लिए एक फिक्स्ड इनकम रहता है, सो दैट वो जहां पे भी वो रहेंगे, एक अगर फाइनेंशियली उनकी नीड्स को अगर पूरी होता रहेगा तो उस चीज में उनको बहुत उस तरह का फायदा होगा। हम एनपीएस के बारे में स्पेशली उस टाइप जब अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में जब बात करेंगे तो हम जरूर करेंगे इसके ऊपर काफी डिटेल में, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। अभी मार्च का महीना भी आ रहा है तो कई लोगों को आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करना होगा, सो ये सब चीजें ऑनलाइन हो जाती है। एनपीएस आपको ऑनलाइन मिल जाता है बना के, आप एनएसडीएल के वेबसाइट से भी या और भी कहीं बैंक्स के थ्रू भी आप आपका एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हो, बहुत आसान है, सब कुछ आप ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकते हो उसको। तो इस तरह का आपके पास ये एनपीएस का, और उसमें आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, म्यूचुअल फंड की तरह वो काम करता है, बहुत उसमें खर्चा कम आता है, जो 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 फीस होती है मैनेजमेंट फीस वो बहुत सबसे कम है। ज्यादा वो पॉपुलराइज कई बार नहीं हो पाया है फॉर वट एवर रीजंस, बट बहुत अच्छी स्कीम मुझे लगता है वो है। आप कोई सॉवरेन बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है, चाहे वो गोल्ड के लिए है, गोल्ड के बहुत फेमस है, गोल्ड की स्कीम में सॉवरेन बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट की जो पैसे की जरूरत होती है। उसके साथ साथ में कुछ जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है वो भी जैसे कि आईआरसीटीसी हो गया या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, इस तरह की भी कुछ कंपनीज के थ्रू वो बॉन्ड्स इशू करती हैं, जो कि टैक्स फ्री भी होती है, कई कुछ स्पेशल बॉन्ड्स होते हैं वो, और अदरवाइज भी वो उस पे आपके लिए उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। जो गोल्ड के बारे में हम बात करते हैं वो तो ऑलरेडी हमने बात की है, गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, राइट। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि देखिए, ये हमने अभी एक ओवरव्यू लिया है कि हमारे पास सेविंग के और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है अलग अलग, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। ऑफ कोर्स यू विल गेट अ हैंड आउट ऑफ दिस होल थिंग एंड आपके लिए कई सारे सवाल भी आपके दिमाग में, मतलब द पॉइंट इज ये कहीं ना कहीं पे शुरुआत करना जरूरी है आपके लिए। जब जागो तभी सवेरा है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको उस तरह से आप देखिए कि आप क्या आपके गोल के हिसाब से आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट इन आवर अपकमिंग सेशंस, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको उसको गोल सेट करना जरूरी है। if you would require any help from my side, if I can support you in any way to draw out these plans, I would be definitely available. I'll be more than happy to do that. You can get in touch with Harshali or Shivani, and definitely I would be more than happy to help you in that, and definitely start investing with a small amount ho chahe kuch bhi ho, but start doing it. That's what I want to say at the end. And so I had to say this much from my side. If there are any questions, I would be happy to take. Yes, Rahul ji, we have a few questions in the chat box. I think Akanksha, if you can go ahead and go through them one by one for Rahul ji. Okay, I think I can go probably. I think there's one question that says, please give they're suggesting for us to give a detailed session on NPS and recurring deposit scheme. I think that's from someone. We can definitely discuss. We will definitely do that. Yes. Yeah, definitely we'll do that. I don't know the name of the person जिन्होंने सवाल पूछा है, but we'll definitely talk about this and get back to you. एक सवाल है पल्लवी जी का, SBI स्मार्ट स्कूलर प्लान का बेनिफिट क्या है? देखिए, इस पर्टिकुलर प्लान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ऑफ कोर्स आई विल फाइंड दैट आउट एंड लेट यू नो, बट ये जो प्लान है जो मेरे को जिस तरह से ये नाम से लग रहा है कि दिस इज फॉर द चाइल्ड प्लान जो है, अगर ये या तो दो हो सकता है, या तो ये इंश्योरेंस का प्लान हो सकता है
लाइफ का। देखिए ये प्लान, इस तरह के प्लान जो खास करके जो इंश्योरेंस कंपनी जो बेचती है, जो कि वो कहती है कि वो मार्केट लिंक्ड है, मार्केट से लिंक होती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको पैसा मिलता है, इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ प्लान्स इज दैट इसमें कोई लिक्विडिटी नहीं होती। उसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे, बड़े लंबे समय के बाद आपके या तो आपका बच्चा जो है 18 साल के होने के बाद में या 21 साल के होने के टाइम पे पैसा मिलता है। उस टाइम पे पैसे की जरूरत जरूर होती है, उस टाइम पे पैसा खड़ा होना जरूरी होता है, दैट इज देयर। बट एट द सेम टाइम वही अगर पैसा आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दोगे तो आई थिंक वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल ये चीज होती है। यू डोंट हैव टू लॉक इन योर मनी फॉर सो लॉन्ग। इस तरह के प्लान होते, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान हो या चाहे इस तरह के जो कई सारी कंपनीज जो बेचती हैं, मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्लान नहीं होते वो। अगर आप उसी जगह पे थोड़ा सा एक्टिवली अगर आप आपके पैसे को मैनेज करना करोगे तो इट विल ऑलवेज गिव यू बेटर रेट ऑफ रिटर्न्स और आपका बेहतर रिटर्न देगा जरूर। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक बहुत ज्यादा इस तरह के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स में जाने की ये नहीं होती, बिकॉज वो उसमें और भी अलग अलग टाइप के खर्चे जो है इंक्लूडेड होते हैं। चाहे वो कोई यूलिप के जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं, यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं जिसको हम कहते हैं, तो या ये जो चाइल्ड प्लान भी होते हैं, वो बहुत बेहतरीन प्लान है आज की डेट में, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। Okay, thank you, Rahul ji. One more question from Satish ji is, does providing Form 15GH only mean that bank will not cut TDS from FD, but you will still need to pay tax on FD returns yourself? Yes, that is true. देखिए, what happens is that this Form 15HG is actually essentially is given. जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको you may not have to pay the tax this year at the time of assessment, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर टैक्सेबल इनकम है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। आपका एफडी के ऊपर का जो रिटर्न्स है वो टैक्सेबल जरूर है। अगर आप टैक्स पेयर ब्रैकेट में नहीं आते तो आपको जरूरत नहीं है, वो पे नहीं करना पड़ेगा, आपको बस आपका सिंपल आपका रिटर्न भरना पड़ेगा। अदरवाइज यू विल हैव टू पे द इनकम टैक्स एप्लीकेबल ऑन दैट। So just by giving this form does not mean that you don't have to pay the income tax. You definitely will have to pay the income tax while filing your return. Okay, thank you, Rahul ji. एक सवाल है, comment है कि if someone is a housewife and mom of a special child, what should she do with her savings to have more in hand so as to use that money whenever in need? And there is one more question that says, sir, I was afraid all these days I only invested in lands as mentioned. Can you help us where to start? Sure. So I'll take the first question first. See, I understand that you are a mother of a special child and you have some savings. तो उसको कहाँ पे invest करना चाहिए? I'll suggest that probably you could go for a good debt fund, क्योंकि आपको बीच बीच में पैसों की जरूरत लगती रहती है। देखिए इसमें आपको रिटर्न जो थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन आपको आपके पैसे की सेफ्टी जरूरी ज्यादा इस समय है, बिकॉज आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको पैसे की जरूरत लगने वाली है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली गो फॉर a fund which will not be too volatile. अगर कोई इक्विटी फंड है, इक्विटी में जो पैसा लगाता है, शेयर बाजार में जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाता है, वो आपको जो आपका रिटर्न है वो तो आपको बेटर देगा, लेकिन आपको वॉलेटाइल होने के चक्कर में वो आपको कभी कभी नीचे ऊपर जा सकता है फंड, उस केस में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा सा मॉडरेटली रिस्की फंड में आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप कोई डायनेमिक बॉन्ड फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको नाम अगर मुझे सुझाने हो तो मे बी आईसीआईसीआई का एक हाइब्रिड बॉन्ड फंड है, या एक जो है कोटक का जो है एक हाइब्रिड फंड है, या आईडीएफसी का एक हाइब्रिड बॉन्ड फंड है। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको अभी पिछले साल तक देखा गया है कि करीब करीब 8 से 8.5% तक का आपको
जो है इंटरेस्ट, बल्कि आपको रिटर्न मिला है ईयर ऑन ईयर। सो ये आपको इस टाइम पे कुछ मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप शायद ये फंड में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में जाने का एक ये भी फायदा होता है कि आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। कुछ फंड में तो 100 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो, या 500 रुपए, 1000 रुपए, इस तरह से। तो आप शुरुआत तो बड़े छोटे अमाउंट से भी इसमें कर सकते हो। दूसरा फायदा इसमें ये होता है कि आपको जब जरूरत लगे तो आपको पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, जरूरत के हिसाब से उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपके लिए मैं कहूंगा शायद एक बेहतर ऑप्शन होगा। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, लैंड, या probably investing in land all the time is not a good option। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो आपने किसी भी एक ही एसेट में, चाहे वो कितना भी अच्छा एसेट हो, कितना भी आपको पैसा अच्छा बना के दे रहा हो, लेकिन हमेशा कहीं भी एक ही किसी भी जगह पे पैसा पूरा नहीं लगाना चाहिए हमारा। तो उसमें हमेशा अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए। चाहे मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं कहूंगा मैं, एसेट में पैसा लगाना चाहिए। हमेशा वो अलग अलग इसमें होना चाहिए, उससे आपको एक बैलेंस बना रहता है, उसमें फायदा होता है। देखिए, लैंड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जरूरी नहीं है कि लैंड आपको उस तरह का हमेशा रिटर्न दे। जो कई एग्जांपल्स हैं मेरे पास, अभी आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट ये जो लैंड आपको, अगर मान लीजिए जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको पैसा टाइमली नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आपको शुरुआत करनी हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट इन विद अ नाइस बैलेंस म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस म्यूचुअल फंड, जिसमें कि आपका जो है करीब 2/3 के करीब आपका पैसा जो है वो मार्केट में लगता है, और 1/3 आपका डेट में लगता है, बॉन्ड टाइप के फंड्स में लगता है, जिससे कि आपको दोनों तरफ से एक बैलेंस रहता है। साथ के साथ में, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा सब्सटेंशियल अमाउंट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो, जिसमें कि आप कुछ पैसा आपका ब्लू चिप के जो ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें आप पैसा लगा सकते हो, और कुछ जो पैसा है बैलेंस फंड में लगा के इस तरह के आप एक पोर्टफोलियो इस तरह का बना सकते हो शुरुआत में। लेकिन शुरुआत अगर करनी हो तो मैं कहूंगा कि बैलेंस फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं, और टाइम टू टाइम उसमें पैसा थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, सो दैट जब वो नीचे ऊपर जा रहा है फंड, मान लीजिए अभी नीचे जा रहा है जिस तरह से फंड, तो उसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहे तो आपको उस टाइम पे यूनिट्स ज्यादा मिलते रहेंगे, और आपको ओवरऑल प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा ज्यादा, और आपको जरूरत पड़ने पे आपको पैसा भी मिलता जाएगा। थैंक यू राहुल जी। एक और सवाल है सुमा जी का, विच स्कीम इज बेटर, SBI लाइफ रिटायर स्मार्ट और SBI लाइफ सरल पेंशन? काफी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। देखिए, लाइफ सरल पेंशन जो है, जो मेरे को थोड़ी, जहां तक मेरे को जानकारी है उस प्रोडक्ट की, लाइफ सरल में शायद बेटर प्रोडक्ट हो सकता है मुझे जिस तरह से लगता है, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाली चक्कर नहीं है। लेकिन ये मैं उसको आपको इस समय सिर्फ ये नाम के बेसिस पे आपको मैं सजेस्ट नहीं करना चाहता। ये इसका रीजन ये है कि क्योंकि मुझे पूरी जानकारी होनी जरूरी है कि आपका इस टाइम पे एज क्या है, और क्योंकि उस सब चीजों के ऊपर ये दोनों चीजें डिपेंड करेगी, कि दोनों प्रोडक्ट डिपेंड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन जो सरल प्लान्स जो अभी और भी है, आई थिंक अभी जो जिस तरह से IRDA ने कहा है कि और भी प्रोडक्ट्स में सभी कंपनी अभी शुरू करने वाली है, तो ये बड़े आसान और सिंपल वेनिला प्रोडक्ट्स हैं, वो शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो जो है आपके बाद में आपके नॉमिनी को भी एक अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट उसमें से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, ये पेंशन प्लान्स के पीछे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हैं ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल उसमें एक सहारा मिल जाता है, दैट वी ऑलवेज थिंक ओके दिस इज आई एम हैविंग दिस पेंशन, और हमेशा हमें बचपन से हमें कई सालों से हमें पता है कि ओके पेंशन है मतलब बहुत बढ़िया चीज है। सो इट इज नॉट ऑलवेज सो। So although I would say maybe a part of your investment you can put it in the fund, but I wouldn't really advise you
to go for any kind of these products. Maybe अगर आपको ऐसा पेंशन की तरह ये करना है, अगर इस तरह से अगर चाहिए, तो maybe you can go for a product like अटल पेंशन योजना जो है, जो कि अमाउंट बहुत कम देता है वो, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि अभी इस टाइम पे आपकी एज क्या है। अगर 40 से ऊपर होगी तो आप नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर आप 40 से नीचे हो तो आपको एक छोटा सा अमाउंट भर के भी एक बेहतर उसमें रिटर्न होने का मिलने का एक चांसेस है, जो आपके छोटी सी पेंशन अमाउंट भी देगा, बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। अभी इस टाइम पे अट्रैक्टिव है वो स्कीम, लेकिन आज के बाद 20 साल बाद उसके जो है इन्फ्लेशन हमारा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उस हिसाब से वो जो अमाउंट है वो शायद कम पड़ सकती है। but that's a very good option, कोई भी ले सकता है। Maybe you could actually take that scheme for a fix, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको सपोर्ट किया हुआ है और काफी ट्रांसपेरेंट स्कीम है। तो मे बी आप आपके फॉर योर किड्स और योर अडल्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आपके कोई है, उनके नाम पे आप ये शुरुआत कर सकते हो, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड दे कैन आल्सो यूटिलाइज दिस। थैंक यू राहुल जी। एक कमेंट है श्री राम चौधरी जी का कि जस्ट लाइक बाइंग गोल्ड, इंस्टेड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन बाइंग लैंड्स रादर देन गोल्ड? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड लैंड? सो देखिए, सी द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are buying gold, of course you can buy it with a smaller ticket size, so over the period of time you can actually grow. Now if you're buying the land, of course you'll have to shell out a substantial amount of money. Maybe for example, you can buy gold with maybe even 5,000 rupees or 10,000 rupees, some part of gold, portion of gold. But at the time, for land, maybe you'll have to shell out 10 lakh rupees at least, even if a small piece of land you're buying. So first of all, the ticket size, that's one thing. The second thing is that gold you can buy with, of course you can land and gold you can buy physically, but gold you can buy virtually also, which actually helps you in your, you don't have to take care of, you don't have to be worried about its safety and security and all of that. The other thing is that, while selling, again the ticket size, if you want to sell, you will have to find a big buyer for that, a buyer who could actually buy that whole land. But for selling the gold, you can maybe sell a small portion of your gold at the time of need, and that is actually helpful. In terms of land, there is another risk that, in India, many times I've seen that some people encroach lands and a lot of other issues happen, and sometimes it becomes difficult to even evict them and all of that. So those are the issues in, while buying the physical gold or whether physical, the land basically. Of course, what I'm saying is not an absolute truth. This is a qualified truth. Depending on each and every situation, it will depend. But this is a generic, a very generic statement I'm giving, that this may not be always a good idea to buy a gold or a land. Wonderful, thank you. एक बहुत अच्छा question आया है अवनीत जी का. Is there any relaxation if we invest in the name of our special child? Or is there some fund or investment scheme that helps procure the needs of special children? Yes, so that's a very good question. So your first question is whether there is any relaxation in the income tax. Actually, there are a couple of provisions for a special child, for the parents of special child. There is a relaxation for their medical treatment. You can claim exemption under section 80DD. Then there's another provision for section 80U, where there's a provision of income tax exemption up to 75,000 rupees for a person who either himself is a disabled or parents of them.
for disabled child, where you can claim if the disability is up to 40%, then it's a 75,000, and if it's more than 60%, then it is 1,25,000 is the annual income tax exemption that is there. Rebate, actually, not exemption. Rebate is there. You can claim definitely that while you're filing your income tax return. But there is no specific product which will save the taxes for them. Of course, there's some insurance product by some insurance companies that were there. I'm not sure whether they're still there, but I will definitely find out in one of these sessions. I will definitely find out, and I can share that with you guys, all of you. So product, I'm not sure now. Of course, yeah, there are some there are a couple of mutual fund products which are there for these which are available, but they don't specifically give any additional advantage or anything. They say they are special products, but I am not really clear as to what is the intention. It could be just a marketing. It could be just done to market a different kind of a mutual fund, probably. But I haven't really seen any specific product so far. And there was another question also. I'm sorry, I've just slipped out of my mind. I think. No, are there any investment schemes that help procure the needs of special children? But I was also going to suggest to Avneet ji that आप अपने screen पे, like you can see, हमारे पूरा year का हमने बैठ के राहुल जी के साथ topics plan किए हैं. तो उसमें 25th July is our session, special considerations for parents of young children with disabilities. So I don't know if your child is young or not, but 25th July and 29th is for the adults. So that might be a session that would be really, really helpful for you, because उसमें राहुल जी specifically, I think you will be answering questions similar to this, right, Rahul ji? Yes, that will be. That's correct. Special considerations and things like that. So, आप उसको definitely you can cover that. I'm just एक बार Rahul ji, I'm just checking the chat box to make sure I've answered everybody's questions. I think we have. I hope we have answered everybody's questions. This is wonderful that आप सभी ने अपने questions डाले हैं यहाँ पे. They were very varied questions जो I think सारे parents को help किए हैं, जिन्होंने भी सवाल पूछे हैं. So as you can see, before we wrap up, you know, we have our list that we will send you this document. You can download, you can keep it with you. These are all the topics we have set up all the way till end of the year. So like I said, this is our standard session every month, last Sunday, 11:30 to 1 a.m. on Zoom. And we hope that you will join for as many of these sessions, because we are trying to cover the entire gamut of financial topics. You know, it's very difficult naturally कि एक टाइम पे हम कोई भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएं. तो जैसे यहाँ पे काफी कमेंट्स भी आए हैं कि can we do a session on mutual funds, can we do a session on this. So आप देखेंगे इसमें कि we have covered everything. We have also we are going to talk about estate planning. We are going to talk about wills and trusts. So जिन्होंने भी ये comments दिए हैं, just rest assured that we have already considered these critical topics. I know are very critical for all the parents, no matter आपके बच्चे की age क्या हो. So of course you can also suggest additional topics to us. We will be sending you a very brief survey, maybe 2 or 3 questions only. Based on today, you can tell us if there are any specific topics that are burning for you कि ये information मुझे चाहिए. Please let us know. You know, we'll sit with Rahul ji and figure out how we can incorporate that. And last slide is just Rahul ji's you know, email, contact. And हाँ, Rahul ji, एक comment आया है यहाँ पे कि Fatima ji says that thanks a lot for the informative session, sir. Explained in a simple and nice way. Can I connect for personal consultation also? So I just will leave that to you. You know. Yes, you can email me and we can take it forward from there. So you have, everybody has his contact information. So you can please feel free to either message him or Samarthya or Snick or on the WhatsApp group. We are all here for you, specifically to help support your decision making and your knowledge and your awareness as it relates to financial planning, no matter the age of your child. Okay. Anything else before we wrap up?
All right. Wonderful session and very informative, Rahulji. I mean, I also learned many things out of it actually. I was also not aware, and I'm not aware of many, I mean, upcoming session. I'm looking forward to it now. Thank you so much. Thank you so much. I Yes. also am looking forward for the entire gamut of these sessions this year. Yeah, that is a wonderful idea actually. We Yeah. have. क्योंकि हमने इस तरह से प्लान किया है कि एवरी मंथ हम एक टॉपिक पे पूरा डेडिकेटेड 1.5 आवर रखें. So आपको जब हम when we send you that document, you know, of the topics, and when you sign up for that session and come, you can even come with your questions ahead of time. आप plan करके आ सकते हैं specific to your child. उस topic में आपको क्या questions है. That way we can help answer more of your questions related to that topic. Correct, and we can actually probably frame our presentation in such a way that we actually would incorporate your questions so that it is more useful for you. Exactly. अगर आप हमें अपने सवाल पहले भी भेज सकते हैं तो we can incorporate those things so that it becomes very customized to all the people who are here. जैसे राहुल जी ने शुरुआत में बोला कि information Google पे तो हर जगह मिल जाती है, finances की और products की. All this information is available, but I think what we can really take advantage of Rahul ji's presence here is how do we apply that? How can you apply that to your specific family's financial goals, depending on your child's age, depending on your age, depending on how many children you have, depending on the child's disability diagnosis. In सब चीजों के साथ we want to give you as much of a customized learning experience as we can, because otherwise you can go on many forums, YouTube पे 1000 चीजें available हैं. But what I think he's going to give us through his dedicated time, dedicated topics, I believe is going to be extremely useful. That's why I'm so excited about it. Yes, Harshali. Parent can post their questions ahead of the session in WhatsApp also, or mail us on any platform. Samarthya, Sir, Snake, we are all here together. Yeah. And now you're part of the WhatsApp group, which means that आपको हर महीने के हम Zoom link उस पे भेजते रहेंगे. So you're already part of the group. आपको सारे communications उस पे मिलते रहेंगे. And like Harshali said, feel free to share your thoughts and suggestions for topics, and we will try to incorporate that for our next month. And I hope to see all of you next month again. All right. Absolutely. Again, I want to thank you so much, Rahulji, for your time and your expertise. Really means a lot to all of us here. And we have a lot of parents today, and I'm sure they're all thanking you. So we will see you again next month. Thank you so much. Look forward to seeing you again, Yes. all of you. Thank you, everybody. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you for joining us.